حضرت زید شہید جن کا حرم کربلا اور نجف کے درمیان ہے، ان کی ہی یہ تلوار ہندوستان کے بادشاہوں کے حوالے سے ہمارے امروہہ تک پہنچی۔ ہیلو دوستوں، ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے۔ دوستوں، آج 8 محرم ہے اور اس دن کو لشکر حسینی کے سپہ سالار جناب عباس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور آج ہی کے دن ان کی شہادت اس وقت ہوئی تھی جب وہ ننھے بچوں کے لیے نہر فرات میں پانی لینے کے لیے گئے تھے۔ دوستوں، اس وقت میں کھڑا ہوں بڑے دربار میں، جہاں پر جو ہے چھریوں کا ماتم کیا جائے گا۔ دوستوں، آج 8 محرم تھا، جہاں پر ہر سال کی طرح امروہہ میں غم منایا جاتا ہے، اور اس مہینے میں یہ مہینہ حسینی لشکر کے سردار جناب عباس کی شہادت ہوئی تھی۔ تو آج میں آپ کو دکھاؤں گا محلہ بڑے دربار میں ایک امام باڑہ ہے، اور ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی قدیمی امام باڑہ ہے۔ تھوڑا سا ہم اس کے کتنا پرانا ہے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو ہے جناب ڈاکٹر ناصر نقوی صاحب ہیں۔ تھوڑا سا ہم اس امام باڑے کے بارے میں پوچھیں گے کہ کتنا سال پرانا یہ امام باڑہ ہے، اور اس ریتی رواج کو یہ کب سے ادا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ سر، بہت بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ امروہہ میں پہلے تک اب سے تقریباً 20 سال پہلے تک 72 امام باڑے تھے، جو اب اس وقت ماشاءاللہ 110 امام باڑے ہو چکے ہیں، اور یہ محلہ دربار کلاں کا مرکزی امام باڑہ ہے۔ اس محلے میں بھی 3 امام باڑے ہیں، ایک ہمارے کشک پر ہے، ایک محل میں ہے۔ دونوں امام باڑے زنانے ہیں، یہ مردانہ امام باڑہ ہے، اور یہ منسوب ہے سید شمس علی خان صاحب سے، جو ہماری تقریباً 250 سال پہلے انہوں نے اس عزا خانے کی تعمیر کی تھی۔ جس ہال میں اس وقت میں کھڑا ہوا آپ سے باتیں کر رہا ہوں، یہ تقریباً 250 سال پرانا ہے، اور جو باہر کا ہال ہے یہ 103 سال پرانا ہے۔ اور اس ہال کی جو تاریخ ہے عزا خانہ اس باہر والے کی، یہ خود میرے والد نے اس کی تاریخ نکالی تھی، جو پتھر پہ اس میں موجود ہے۔ تو 103 برس کا یہ باہر کا گیٹ ہے، اس پہ آپ پتھر دیکھ لیجئے، وہاں پہ تاریخ لکھی ہوئی ہے، اور یہ تقریباً 250 سال پرانا ہے۔ اور اس طرح یہ محلہ بڑا دربار عبد الماجد صاحب کا خاندان اور دیوان سید محمود صاحب کا خاندان ہے، اور اسی محلے کا ایکسٹینشن کٹکوئی ہے، منڈی ہے، یہ تینوں ایک ہی خاندان کے ہیں۔ اور اس طرح سے اس عزا خانے سے 9 محرم کو جوڑیوں کا جلوس نکلتا ہے، جو کل نکلے گا۔ آج 8 محرم کا جلوس ابھی یہاں ختم ہوا، اور یہاں 4 بجے مردانی مجلس ہوتی ہے اس امام باڑے میں، اور اسی امام باڑے میں 5 شعبان کو امام زین العابدین کی ولادت کے موقع پر ایک آل انڈیا محفل مقاصدہ بھی ہوتا ہے۔ اس میں ایک علم بھی شب عاشور میں برآمد ہوتا ہے، اور کل جو جوڑیاں اٹھیں گی اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ جوڑیوں میں جو سب سے پیچھے کی جوڑی ہے وہ امام زین العابدین کے صاحبزادے حضرت زید شہید کی اپنی نشانی ہے، جو ہمارے یہاں موجود ہے۔ اور حضرت زید شہید یعنی امام حسین کے پوتے، ان کی تلوار بھی ہمارے اسی عزا خانے میں، تلوار بھی ان کی اوریجنل تلوار موجود ہے، جو 7 محرم کو یہاں آ جاتی ہے، اور وہ 10 محرم تک اسی عزا خانے میں رہتی ہے۔
उसके बाद यहाँ इसी मोहल्ले में हजरत शाह विलायत साहब की ओरिजिनल अंगूठी भी मौजूद है, अच्छा, उनका अच्छा। असा भी मौजूद है। ये यहाँ की अजमत है। बहरहाल हुसैन के सगे पोते हजरत जैद शहीद का तबर्रुक होना ये इस मोहल्ले के लिए भी इज्जत है और अमरोहा के लिए भी बिल्कुल इज्जत है। बिल्कुल। जैसा आपने बताया कि बहुत सारी निशानियां यहाँ पर हैं, जी, तो जी। वो पब्लिक को अब दिखाते पब्लिक हैं, को पब्लिक 3 जो है तारीख से, आज 7 तारीख से और 10 तारीख तक उनकी, अब ये जो आप देख रहे हैं कि ये जोड़ियां उसी सिलसिले से हैं, और ये जोड़ियां जो इसमें सबसे ऊपर का वो बुर्ज है वो भी हजरत जैद शहीद का ही है, और इसके ही इस्तकबाल में 72 जोड़ियां और होंगी जो कल 4 बजे मजलिस के बाद यहाँ से जुलूस बरामद होगा, जो महल्ला जो बड़े बाजार से होता हुआ और जट बाजार से होता हुआ महल्ला कटकुई पहुंचेगा, और 10 मुहर्रम को वही जुलूस फिर वापस आ जाएगा। बहुत सारी जानकारी जो है हमसे मिली। ये जानकारी अमरोहा में बहुत सारे लोग नहीं जानते और हम भी नहीं जानते थे। हम एक जानकारी और लेना चाहेंगे। आपने बताया 250 साल तकरीबन ये जो है इमाम बाड़ा तामीर हुआ था। जी, जी। एक बात और पूछना चाहूँगा, यहाँ पर जुलूस जो आता है जी। वो कुछ आइडिया है कि कब से यहाँ पर आना शुरू हुआ है? देखिए, जुलूस हमारे यहाँ अमरोहा में तकरीबन 300 साल पुराने जुलूसों का सिलसिला है। हजरत शाह मिस्कीन से ये जुलूसों का सिलसिला शुरू हुआ, और सबसे पहला जुलूस जो बरामद हुआ था उस पर अमरोहा भी नहीं बचा था। चांद सूरज के इमामबाड़े से वो जुलूस निकला था, और वो मोहल्ला सद्दों से राउंड करके और फिर वहीं आके क्लोजिंग हो गई थी। लेकिन जैसे जैसे शहर बसा तो फिर उसके बाद, क्योंकि शाह विलायत साहब का अपना ओरिजिनल घर पजदरे पर है, तो वो अच्छा। इमामबाड़े के साथ है, इसलिए हमारा 3 तारीख का जो जुलूस होता है वो पजदरे के इमामबाड़े से बरामद होता है। 4 तारीख का जो जुलूस है वो मोहल्ला छेवड़ा मछरट्टे से बरामद होता है, हुरमत शाह का इमामबाड़ा है वो। तीसरा जो जुलूस 5 तारीख का होता है वो मोहल्ला सद्दों से बरामद होता है, और वफाकी एक सक्का था, उसने वो जुलूस उठाया था, वो शियों ने जुलूस नहीं उठाया था। तो क्योंकि ये सुन्नी शिया इत्तेहाद का शहर है, तो वफाकी सक्के ने क्योंकि जुलूस उठाया था, इसलिए उसी रिवायत के साथ वो आज भी उठता है। उस जुलूस के पीछे हमारा दौरा नहीं होता। हमने वफाकी सक्के से कहा था जिस तरह तुम चाहोगे वैसे जुलूस होगा। 6 तारीख का जुलूस मुसम्मात नूरन अल्लाह काली पगड़ी से बरामद होता है, और 7 का कटरा गुलाम अली से बरामद होता है, और 8 तारीख का वही जो तारीखी जुलूस है वो हमारा चांद सूरज के आज़ा खाने से ये बरामद हुआ। 1950 से हमारे जुलूसों का टाइम चार्ट बना कि किस वक्त ये जुलूस बरामद, 50 से, और 1948 में बना था, लेकिन 1950 से जब पाकिस्तान बन गया तो फिर हमने एक चार्ट हमारे बुजुर्गों ने बनाया, और आज भी, अब मिसाल के तौर पर हमारे मोहल्ला बड़े दरबार में पहली तारीख का जुलूस अगर 2:20 पे पहुंचना है तो आज भी 50 साल के बाद भी 2:20 ही पे पहुंचेगा। ये हमारी इस टाइम चार्ट से लोग अपनी घड़ियां मिला लेते हैं। तो इमाम हुसैन ने वक्त की कदर बताई है, इसलिए वो भी एक पैगाम है कि अपने वक्त को सीखो, अपने वक्त की इज्जत करो और अपने वक्त के पाबंद रहो। बिल्कुल दोस्तों, इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से साल का पहला महीना मुहर्रम का होता है, और अमरोहा में सभी लोग जैसे कि बताया कि मिलजुल कर यहाँ पर जुलूस में शामिल होते हैं और जुलूस को निकालते भी हैं। तो बहुत सारी जानकारी हमें जो नहीं पता थी और अमरोहा के लोगों को नहीं पता थी, सर ने हमें बताई, और पूरा तफसील से जुलूस कहाँ से निकलता है। 7 जुलूस होते हैं शहर में। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हमारा ये बाहर का जो हॉल है, ये 1343 हिजरी में ये तामीर हुआ, और ये 1446 शुरू हो गई, और इसलिए मैं मोतबर हूँ कि वो तारीख मेरे वालिद की निकाली हुई है, नाजिर हुसैन अमरोवी की, और उनके नाम से पत्थर यहाँ लगा हुआ है, वो भी आप कवर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इमाम हुसैन के पोते और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जो हमारे चौथे इमाम हैं, उनके छोटे साहबजादे हज़रत ज़ैद शहीद, जिनका हरम करबला और नजफ़ के दरमियान है, उनकी ही ये तलवार हिंदुस्तान के बादशाहों के हवाले से हमारे अमरोहा तक पहुंची। हमें नाज है कि हम इस तलवार के वारिस हैं, और ये तलवार, इसका इस्तकबाल जोड़ियों से होता है। ये और इसके साथ जो नेज़ा आया था वो उन्हीं का नेज़ा है, जिसके इस्तकबाल में 72 अलम 9 तारीख में जोड़ियों का जुलूस बन के निकलते हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद था दरबार कला, जो कि बड़ा इमामबाड़ा, बड़ा दरबार के नाम से जाना जाता है। बहुत ही पुराना यहाँ पर इमामबाड़ा है, जैसे हमें सर ने बताया, और आपको ये पूरा इमामबाड़े का व्यू हमने आपको दिखाया, और इसकी इमारत भी दिखलाई, और बहुत सारी जानकारी हमने जो है सर से पूछी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। मेरा नाम इमरान मलिक,
پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے جے ہند۔ امروہہ کو سبسکرائب کریں۔